10वां प्रश्न रेडी। 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सेलिंग और बीच वॉलीबॉल 2016 ओलंपिक में किस प्रतियोगिता क्षेत्र में आयोजित किए गए थे? Sailing and beach volleyball were two events held in which competition zone at the 2016 Olympics? Sailing and beach volleyball. ऑप्शन देखिए। A. Summer Olympic. Diodoro. B. Copacabana. C. Barra. D. Maracana. Copacabana is the beach. Maracana is this football stadium. Diodoro, Barra, I don't know, but I think it's Copacabana क्योंकि beach volleyball sand पे खेला जाता है. Two events Copacabana sailing is in competition zone. Copacabana. I think it could be What is Copacabana. Barra? I don't know what Barra is. Diodoro है, but Copacabana Copacabana is beach the है beach, और उनका Beach volleyball and sailing. हाँ sailing. तो दोनों पानी पे. टाइम निकला जा रहा है, बोलिए क्या करें? Call. नहीं. No? You sure with Copacabana? I'm pretty sure. मुझे लग रहा है B Copacabana, but I don't know what Barra is. Yeah, let's go. It's the beach. Pop. B Copacabana को lock कर बी दीजिए. कोपाकाबाना कह रहे हैं बहुत सोच विचार के बाद। लग गया ताला, बिल्कुल सही है। दस प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 2016 ओलंपिक्स का आयोजन किया था जी ब्राजील में। जी, हमने और शूटिंग की कोपाकाबाना वहाँ। बीच जो है वो बहुत ही प्रख्यात है जी। रियो डी जेनेरो में। Ipanema and Copacabana. यस, इपनीमा इनको। सर, हम लोग ये- पहली बार धूम 2 की शूटिंग के लिए वहां गए थे ओके ओके। और फिर हम लोग वर्ल्ड कप जब 2014 में गए थे तो वी वर स्टेइंग ऑन कोपाकाबाना. तो चेक आ रहा है इनके नाम 3,20,000 का, और तालियां मत जाए इनके लिए। बहुत बढ़ना है अभी. एक तो जाना है फिर 3,20,000 भाई, बेटर है। थैंक यू. ये बहुत ही नेक काज के लिए दिया जा रहा है। आगे चलते हैं भाई साहब, तीनों लाइफलाइन आपके जीवन में बहुत ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सत्यजीत रे ने फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जॉन रेनोआ को भारत में आधारित किस फिल्म की शूटिंग के लिए कोलकाता के पास स्थान ढूंढने में सहायता की थी? Satyajit Ray helped the French filmmaker Jean Renoir scout locations near Kolkata for the shooting of which film set in India. Option देखिए। A. Breathless. B. The Rules of the Game. C. The River. D. The 400 Blues. Breathless. The Rules of the Game. The River, the 400 Blues. I think it's C, the river, but नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं. it can't be 400 blows, blows. Chinese film. It can't be breathless. It can't be the rules of the game. It has to be the river. The river. सी द रिवर river. को लॉक कर दीजिए कर दें? सी कह रहे हैं द रिवर। बहुत ही विश्वास के साथ शुजित सरकार बोल रहे हैं, ताला लगाया जाए इसे। वेल प्लेड सर, इट्स द राइट आंसर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आएगा और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी हो जाइए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। 1764 में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, जिसने निर्णायक रूप से भारत में ब्रिटिश राज स्थापित किया? Who led the British Army in the Battle of Buxar in the year 1764, a crucial engagement that consolidated British rule in India? Options: A. Robert Clive. B. Hector Munro. C. Warren Hastings. Warren Hastings. D. John McNeill. I think it's C, Warren Hastings, but it could be C, Warren 3 Hastings. लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। It could be गलत हो C, गया Warren Hastings. रॉबर्ट क्लाइव. तो आप नीचे आ जाएंगे 3:20 नहीं, पे, Hector Munro, McNeil नहीं. और तीनों लाइफलाइन Are you sure it's not Hector Munro? समय की कोई जॉन पाबंदी। मकनील के बारे में मैंने सुना नहीं. रॉबर्ट क्लाइव.
What is the three lifeline we have? Robert Clive and British rule, I know, but I don't know if he was. You're not sure about this, or No, I'm Warren Hastings, Robert Clive के बीच में मैं confused. Yeah. Hector Munro was a general, but उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन I can't remember कि did he lead the British Army. But Warren मन में Hastings. दुविधा हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं, ऑडियंस की लाइफलाइन जीवित है। ये audience को नहीं भी- Video call a what friend are the है। other things Any we- audience poll, they know everything. Okay. We'll go with the lifeline, please. कौन सी? Audience poll. ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाहेंगे? अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। और आपका समय शुरू होता है अब। बी, हेक्टर मनरो को 51% मिला है, बाकी तीनों को 17, 28 और 4। क्या करेंगे? I told you, Hector Munro is a famous general. Yeah. I'm just thinking. पर ये म्यूजिक लगा देते तो टेंशन और बढ़ जाता है। हेक्टर मनरो का नाम जरूर जहन में है, Yes, सुना Hector था। Munro was, but in Kolkata there is a. वो कोलकाता, if it was in कोलकाता, West- वॉरेन हेस्टिंग्स का वो है ना बिल्डिंग। हाँ. लेकिन कोलकाता मींस दिस इज सी। This is Bihar. सवाल अब फिर से पढ़िए। Who led the British Army in the Battle of Buxar in 1764? This is before East India Company took over. A crucial engagement that consolidated British rule in India. Kolkata was made the capital after British rule. Yeah. तो उन्होंने जो कुछ भी बनाया होगा Sure. उसके बाद में बनाया होगा। Yeah. They are going 40% on Hector Munro. Go for Hector Munro. Are you appreciating my gameplay? आई एम बट आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग कि आप इतना समय ले रहे हैं उत्तर देने में। So then तो let's go with Hector Munro. आसान कर देते, आप जवाब हमें बता दीजिए, हम लोग लॉक कर देंगे। क्या है? आप बोलिए, हम ताला लगा देंगे। क्या है? So Hector Munro पे जाओ। तो जनरल तेरे को याद है? देखो भैया, गलत हो गया ना तो 3-20 पे आ जाएंगे हम लोग। जिस फिल्म के लिए बात करने आए हैं उसका शीर्षक क्या है? आई वॉन्ट टू टॉक। आपस में ही बात ये चले जा रहे हैं। क्या करें? हेक्टर मनरो को बोलो। लॉक कर। यू वांट टू लॉक? कंफ्यूजन तो है अटर। फोन कर लेते हैं। चलिए, नहीं कर लेते हैं। Hector हेक्टर मनरो। Hector Munro. Hector Munro. बी हेक्टर मनरो। बी, हेक्टर मनरो कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही है। चलिए, वो कह रहे हैं सही है। इज द राइट आंसर। हेक्टर मनरो ब्रिटिश सेना में एक मेजर थे वो, और जिन्होंने बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य सहित भारतीय राज्यों के गठबंधन के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया था। हेक्टर मनरो। ऑलराइट। Thanks for all your help, Ahilya. You've been great help I've throughout been this doing competition. absolutely Thank you. चलिए, खेल को आगे बढ़ाते हैं। 13वां प्रश्न है ये। 25 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए। 13th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। इंग्लिश प्रीमियर लीग के I know this. निकल गया वो समय। सर ये तो मास्टर है फुटबॉल। इंग्लिश प्रीमियर। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक सत्र में सबसे कम गोल खाने का रिकॉर्ड किस क्लब के नाम है? लिवरपूल। जो रिकॉर्ड Oh. 2004 और 5 में बना था। Yeah. Which Jose club Mourinho's holds the first season. record of conceding the fewest goals in a single season of the English Premier League set in 2004-2005? And your options You will are not answer. A. Liverpool. Blue is B. the color. Manchester Football United. is C. the game. Arsenal. D. Chelsea. ये 3 बाकी छोटे छोटे क्लब्स हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। No, The don't right say that. सही जवाब है उसके डी, चेल्सी। बाकी फैंस जो है वो नाराज हो कुछ जाएंगे। नहीं। क्या करें? आंसर D, इज डी, चेल्सी को D, लॉक कर Chelsea. दीजिए। Lock. डी पे थल लगाने के लिए कह रहे हैं। Is the right answer. Well done. चेल्सी ने उस सीजन में 38 मैचों में केवल 15 गोल खाए थे। उस समय टीम के कोच थे जोसे मरीनो। जोसे मरीनो। और जॉन टेरी। उसी साल चेल्सी ने प्रीमियर लीग भी जीता था, जो कि जी। 50 सालों में उनका पहला टाइटल था इन 50 years।